جناب یوزارسیف کی بہت یاد آ رہی ہے. انہیں طبس کے تمام احوال بتائیے گا اور ہمارا پیغام دیجیے گا کہ فوراً طبس واپس آ جائیں. جی ہاں، نہایت ضروری امر. کہیے گا کہ جناب فرما روا نے انہیں یاد فرمایا ہے، لہٰذا فوراً طبس واپس آ جائیں. اطاعت عالی جناب. انہیں اندازہ بھی نہیں کہ ہم نے ان کے لیے کیا سازش کی ہے. نیم صابو، یہ فضول بات نہیں کہ گندم کو خوشوں کے ساتھ ذخیرہ کر رہے ہیں. یوزارسیف اتنے سارے گودام تعمیر کرنے کے بجائے صرف ایک گودام بھی بنا سکتا تھا اور صاف ستھرا گندم کو جو یقیناً کم جگہ گھیرتی ذخیرہ کر لیتا، اور یوں ہماری عوام کے سرمایے کو اس طرح برباد تو نہ کرتا. میں کیا کہوں، جناب یوزارسیف آ گئے ہیں، خود انہی سے پوچھ لیں. سلام بر نبی خدا. درود خداوند ہو نیمی صاحب پر. درود خداوند ہو آپ پر بھی. کیا ہوا جناب کاہن، گندم جمع کرانے آئے ہیں؟ نہیں علی جناب، آئے ہیں کہ جنجال برپا کریں. فرما رہے ہیں کہ اتنے سارے گودام کیوں تعمیر کیے گئے ہیں، گندم کے لیے ایک گودام کافی ہوتا ہے. درست کہہ رہے ہیں. ہم اتنے سارے گوداموں کی جگہ صرف ایک گودام کو ذخیرہ سازی کے لیے استعمال کر سکتے تھے، لیکن اس صورت میں ہم بھی کاہن اعظم آخماہو اور معبد کی گندم پر وارد ہونے والی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جاتے. جی ہاں، وہ راز جو میں نے 5 سال سے کسی سے بیان نہیں کیا تھا یہی ہے، وہ راز جو میرے خدا نے مجھے بتایا ہے. یعنی ہم بھی خوشوں سمیت گندم کو ذخیرہ کر سکتے ہیں؟ سب کر سکتے ہیں، بشرط یہ کہ گودام تعمیر کرنے اور گندم کی ذخیرہ سازی کے لیے اتنا وقت میسر ہو. تو آپ جانتے تھے کہ آپ کو اپنا یہ راز کب افشا کرنا ہے؟ آپ کافی سمجھدار معلوم ہوتے ہیں. مجھے صاحب ثروت حضرات اور کاہنوں کے سوء استفادے کی راہوں کو مسدود کرنا تھا. میرے خدا نے مجھے مردم مصر کو اس قحط سے نجات دلانے پر مامور کیا ہے. اگر سب جان جاتے کہ گندم کی محفوظ ذخیرہ سازی کیسے کی جائے تو اس وقت طبس کے تمام گودام گندم سے بھرے ہوئے ہوتے. چلو یہاں سے. درود بر پیامبر خدا. تم پر بھی خدا کا درود ہو. اور طبس کی کیا خبر ہے مالک؟ وہاں سب ٹھیک ہے عالی جناب، البتہ کاہنان آپ سے بے انتہا نالہ ہیں. جناب آخناتون اور بانو آپ سے فوری ملاقات کے خواہاں ہیں، اور انہوں نے تاکید فرمائی ہے کہ فوراً سے پیشتر طبس کے لیے روانہ ہو جائیے. اچھی بات ہے. نیمی صاحب تم فوراً طبس کے لیے روانہ ہو جاؤ اور ہم سے پہلے وہاں پہنچ کر انہیں ہماری آمد کی خبر کرو. اطاعت علی جناب. غالباً کوئی بہت ہی خاص کام ہے جو یوں فوری طلب کیا ہے. جناب رودامن. نیمی صاحب تمہیں تو یوزارسیف کے پاس منفیس میں ہونا چاہیے تھا. جی ہاں جناب. تو پھر یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں ہی آیا ہوں تاکہ جناب اخناتون کو جناب یوزارسیف کی طبس آمد کی خبر کروں. آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں یہاں لنگرگاہ کی نگہداری اور حفاظت پر مامور ہوں. آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی. فی الحال میں ذرا جلدی میں ہوں. جناب یوزارسیف بس طبس پہنچنے ہی والے ہیں. آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہے، میں ابھی واپس آتا ہوں. بوروموریاس،
फौरन कस्र पुतिफार जाओ और मेरी जानिब से बानो जुलेखा से कहो कि वो जिसकी शिद्दत से मुंतजिर हैं वो आज तिब्स पहुंच रहे हैं। कहाँ चली बानो? क्या सुना नहीं? यूजासिफ तिब्स आ रहा है, नील के रास्ते। मैं उसे चाहती हूँ और जुलेखा अपनी चाहत से दस्तबरदार होने वाली नहीं। ए सिपाही को इनाम देना मत भूलिए। इस हुलिये में आपका बाहर जाना मुनासिब नहीं, आपके लिए मायूब है। सिपासगुजार हूँ। रामा, यामिनी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये बाला पूछ लेकर उनके पीछे जाओ, जाओ जल्दी। वही है मुशीर खास साहिब मकाम जरी। वो मुअब्बर आजम यूजारसीफ हैं। हाँ वही है, और मर्दम मिस्र के रोजी रसा। तुमने देखा? वो गुलामों के दोष पे सवार नहीं हुए। जाहिर है कि वो लोगों के कांधों पर से बोझ कम करने के लिए आए हैं, ना कि उनके कांधों पर अपना बोझ बढ़ाने के लिए। बानो, आखिर आप जुजारसीफ से क्यों मिलना चाहती हैं? क्या आप उनसे मिलकर अपनी वालिहाना मोहब्बत का इजहार करना चाहती हैं? आप क्या समझती हैं कि वो आपको कोई अहमियत देंगे? वो इस वक्त एक साहिब इक़्तिदार और खूबरू जवान है, लेकिन आप क्या हैं? कभी आपने खुद को आईने में भी देखा है बानो हुजूर? तो क्या मैं बहुत बदसूरत हो गई हूँ? क्या मुझे देखते ही हक़ाइक़ से मुंह मोड़ लेगा?
मेरी इस बदसूरती और बुढ़ापे का मजाक उड़ाएगा। ये देखो जुलेखा की हालत कैसी हो गई है। हाँ वही जो कल तक तख्ते रवां पर बैठकर टिप्स के रास्तों से गुजरा करती थी। देखा इश्क ने इनकी क्या हालत कर दी है। नहीं, मेरा यूजर सिर्फ ऐसा नहीं है। वो कभी मुझे हकारत की निगाह से नहीं देखेगा। कुछ भी हो मैं उससे मिलने जरूर जाऊंगी, लेकिन नहीं, मुझ पर उसकी नजर नहीं पड़नी चाहिए। मुझे खुद को आईने में देखना है। देखो तो क्या मैं वही सुलेखा हूँ। मुझे खुद को आईने में देखना है। यार बेवफा, ये है रस्म दोस्ती। खुदावन जनाब आखनतून को सलामत रखे। मैं जनाब फरमा रवाही के फरामीन की बजावरी में मशगूल था। कौन फरमा रवा, कैसे फरामीन? ये तो वो जिम्मेदारी है जो आपके खुदा ने आपको सौंपी है, ना कि मैंने। फरमा रवाए हकीकी तो वो है, और वही है जिसने आपको मर्दमे मिस्र की निजात के लिए भेजा है। और हमारे बिना रूस कैसे हैं? दुरूद बर अजीज मिस्र जनाब यूजार सीफ। ताज्जुब की बात है, जनाब यूजार सिफ को अपने कदीमी दोस्त अब तक याद हैं। भूल जाना हमारा शेवा नहीं, हाजिर खिदमत हूँ ताकि कहीं भुला न दिया जाऊँ। मैं यहाँ इसलिए आया था ताकि तमाम उमूर की गुजारिशात पेश कर सकूँ। यकीनन गोदामों की तामीर और गंदम की जखीरा साजी से मुताल्लिक मसाइल होंगे, या शायद जरूरतमंदों और काश्तकारों से मुताल्लिक, और या फिर काहिनाने माबद और उनकी सरकशियों से मुताल्लिक। एक जिम्मेदार शख्स को जिम्मेदारियों की अंजाम दही के सिवा और क्या काम हो सकता है? बिलाशुबा ये बहुत अहम मसाइल हैं। मिस्र के इन मसाइल को बाद के लिए उठा रखें। फिलहाल हमने आपको किसी और मकसद के तहत यहाँ बुलाया है। लेकिन मुझे तो गंदम की जखीरा साजी और काहिनों की साजिशों से मुतालिक बहुत कुछ है जो आपके गोश गुजार करना है। मुझे यकीन है कि आप न सिर्फ मिस्र को दरपेश मसाइल से बखूबी निमट सकते, बल्कि काहिनों और उनकी साजिशों से भी। वैसे भी इन उमूर पर बाद में बात की जा सकती है। आप आमून और उसके माबद के लिए मंसूबे बनाइए, और मैं और अखनातून आपके लिए। खुद को ज्यादा जहमत में मत डालें। हमने फैसला किया है कि आपको इस मुजर्रदी और तन्हाई की जिंदगी से निजात दिलाएं। अच्छा, तो असल बात यह है, अब तक मैंने शादी के हवाले से सोचा नहीं। हमारा मशवरा है कि अब आप उसके बारे में जरूर सोचें। आसनात दुख्तरे आतून सिस, यकता परिस्तों के काहिन, माबद आतून के काहिन आजम। उनकी बेटी एक अच्छी और खूबसूरत लड़की है। तो नाचीज को मिनफीस से फौरी तलब करने की वजह ये थी। आप आज ही माबद आतून के काहिन आजम जनाब आतून सिस के पास जाइए और उनकी बेटी आसनात को देख लीजिए। इतनी जल्दी भी क्या है? क्यों न हो, आसनात खूबरू भी है और यकता परस्त भी। बिल्कुल। आपको जल्द अज जल्द शादी करना होगी। ये एक हुकूमती फरमान है और इस पर फौरी अमल दरामद होना चाहिए। जी जरूर आली जनाब, जरूर।
मैं बूढ़ी और पशमुर्दा हो गई हूँ, है ना? मैंने चेहरे और पेशानी की झुर्रियां देखी, बदसूरत हो गई हूँ, है ना? लेकिन आपके चेहरे पर अब भी बुजुर्गी और वजाहत के आसार हैं। तो क्या यूज़रसिफ मेरी तरफ देखना पसंद करेगा? आप अब भी मेहरबान और चाहे जाने के काबिल हैं बानो, परेशान मत होइए। नहीं, यूज़रसिफ खूबरू और जवान है। वो मेरी तरफ निगाह भी नहीं करेगा। 15 साल मुसलसल क्रिया उसारी एक पत्थर को भी मोम कर दे। आपने तो अपनी पूरी जवानी यूज़रसिफ पर फिदा कर दी। मैंने अपनी जवानी यूज़रसिफ पर फिदा कर दी। काश में जान फिदा कर देती। मेरा दर्द तो ये है, वो ये नहीं जानता कि मैं इसकी जुदाई में क्या क्या सह रही हूँ। काश वो ये जान पाता, काश वो ये जान जाता, काश। यूज़रसिफ मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। यूज़रसिफ मेरी मदद करो। यूज़रसिफ मेरी मदद करो। आप कौन हैं? मुझसे क्या चाहती हैं? यूज़रसिफ मुझसे क्या चाहती थी? उसका चेहरा वाज़ेह क्यों नहीं दिखाई दिया?
कभी ऐसा हो सकता है कि मेरा यूसुफ किसी दिन इसी रास्ते से वापस लौट आए। खुदावंदा, मुझे मेरा यूसुफ वापस लौटा दे। गुज़िश्ता शब मुझे आपके चेहरे पर अजीब सी अफसुर्दगी के आसार दिखाई दिए। मैं इसकी वजह पूछ सकती हूँ? बाप की दूरी की वजह से। काश आज वो मेरे पास होते। तकरीबन 30 साल होने को आए मैं उनसे दूर हूँ और हर रोज़ मेरी रूह उनकी जानिब परवास करती है। मगर वो कहाँ हैं? आप उनसे मिलने क्यों नहीं जाते या उन्हें अपने पास क्यों नहीं बुला लेते? दरअसल मेरा किनान से ताल्लुक़ है और यहाँ से 1 माह की मुसाफत है। मैंने बारहा चाहा कि उनसे मिलने जाऊँ और उन्हें अपने हालात से बाखबर करूँ, लेकिन शायद अभी उसका वक्त नहीं आया। अभी अहले मिस्र को मेरी अशद ज़रूरत है और वो इस वक्त मुश्किल में हैं। इन्हें जिस्मानी और रूहानी ग़िज़ा की ज़रूरत है और मैं अब तक उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। मुझे खौफ है अगर मैं अपने बाबा और दीगर अहले खाना के फ़िक्र में रहा तो अपने फ़राइज़ की दुरुस्त बजावरी से गाफिल न हो जाऊं और मुझ पर आयद ज़िम्मेदारी नामुकम्मल न रह जाए। लेकिन कब तक? वो आपके वालिद और ख़ानदान वाले हैं, उन्हें आपके पास होना चाहिए। एक रोज़ आएगा जब वो यहाँ होंगे, लेकिन तब तक मुझे उनकी जुदाई का दर्द सहना होगा। मुझे ये परेशानी है कि अगर मैं बाबा को अपने अहवाल से बाखबर कर दूं तो कहीं वो मेरे भाइयों को मुकस्सर जानकर उन पर नफरीन न कर दें, बिलखुसूस जबकि मैं जानता हूं कि बनी इसराइल अभी तक ताइब नहीं हुए हैं। जब तक इरादा खुदाबंदी इस हिज्र फराक पर है मैं भी सब्र करूंगा। ये बनी इसराइल कौन है? इसराइल मेरे वालिद याकूब नबी की कुनियत है और मुझे और मेरे भाइयों को बनी इसराइल कहा जाता है। गोया नबी खुदा अपने भाइयों यानी बनी इसराइल के हाथों दुखी हैं, जिसके बारे में याकूब नबी को कुछ नहीं मालूम। क्या मैं इसकी वजह पूछ सकती हूँ? वक्त आने पर जान जाएंगी। मैं जानती हूँ आप मर्दों के सीनों में कई ऐसे राज होते हैं कि जिन्हें आप बताना पसंद नहीं करते। मैं इस सवाल की बाबत आपसे माजरत चाहती हूँ। हर राज एक दिन फाश होकर रहेगा, वक्त आने पर सब जान जाएंगी। बरसों पहले मैंने आपसे कहा था कि एक साहिर मोहब्बत ने पेशन गोई की थी कि यूसुफ आपके मुस्तकबिल और ईमान के लिए खतरा बन जाएगा। यूसुफ भूल जाएं। मैंने बारहा ये बात आपसे कही, लेकिन आपने कोई तवज्जो नहीं दी। आपने पूरी जिंदगी यूसुफ की खातिर जाया कर दी।
लेकिन क्या कासिर को भूल जाए, कुछ अपनी फिक्र करे, मेरी जुलेखा का ख्याल। अब इस तरह का मैं क्या करूं? मामा, वो मेरी मुन्नी सुहागन थी, वो मेरी खात्मा थी, मेरी माँ थी। अब मैं अपना दर्द दिल और अपना हाल किससे कहूँ? सब्र कीजिए बानो, आपको खुदाओं का वास्ता सब्र कीजिए। आप मेरी हमदर्द और हमराज थी। मैं आपको अपने पास लाई थी ताकि तुम्हें मर्ग मेरी मुन्नी सो हमदर्द रहे। आपको खुदाओं का वास्ता है बानो, सब्र कीजिए। यूसुफ की जुदाई का दुख क्या कम था, जो अब कारी मामा की मौत के गम का भी इजाफा हो गया। ये तमाम खुदा कहाँ है? आखिर क्यों ये तमाम खुदा कारी मामा से भी ज्यादा बेजान और उनसे भी ज्यादा साकित और खामोश होकर मेरे गमों अंदोह के तमाशाई बने हुए हैं। मैं कैसे सब्र करूं? जाओ कारी मामा के लिए ताबूत का इंतजाम करो। हमेशा साई की तरह मेरे साथ साथ रहती थी। मैं रातों को आराम से सोया करती थी और वो एक माँ की तरह जाग कर मेरा ख्याल रखा करती थी। आराम से सो जाइए कारी मामा, आराम से, आराम से। अब आपको जुलेखा की कड़वी किसी भी बातें सुनने को नहीं मिलेगी। ये किसका जनाजा है? कारी मामा। बेचारी कारी मामा, कैसी बेचारगी है। बानो जुलेखा की दस्ते राज थी, क्या शान शौकत हुआ करती थी उनकी। यानी कस्म में अब कोई भी नहीं रहा। मेरा भी यही ख्याल है। बेहतरीन मौका है, हमें चलकर देखना चाहिए। अफसोस कि हम इसे ले जा नहीं सकते। हाँ वाकई।
तुम लोग वापस जाओ, कस्र में कोई नहीं है। क्या कर रहे हो? आहिस्ता। ये पूतीपार का खसर है या रूहों का? अरे यहाँ तो हर जगह जाला तना हुआ है। चलो, इस जगह तो कुछ भी नहीं है। चलो।